So dear students, from time to time in our country or all across the world, we have had God incarnations, अलग अलग स्वरूप में ईश्वर, कभी वो गुरु नानक के रूप में आए, कभी वो गुरु गोविंद सिंह के रूप में आए और कभी वो लॉर्ड राम के रूप में आए। जब लॉर्ड राम के रूप में यहाँ पर इस धरती के ऊपर गॉड आए तो लॉर्ड राम ने, जैसे गुरु नानक जी ने, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपना काम पूरा करने के लिए सिद्धांतों के ऊपर कोई समझौता किया हो। उसी तरह से लॉर्ड राम ने सिद्धांतों के ऊपर कभी कोई समझौता नहीं किया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उनको 14 साल का वनवास हुआ। उसी 14 साल के वनवास में एक ऐसा वर्ष आया जिसमें कि उनको जो राक्षसों के राजा रावण थे उनके साथ युद्ध करना था। रावण के पास बहुत बड़ी सेना थी। अगर लॉर्ड राम चाहते तो अपने पिता की सेना को भी अपने साथ जोड़ सकते थे और रावण के खिलाफ आसानी से जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो वनवास भोग रहे थे, 14 वर्ष का वनवास, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, इग्नाइटेड माइंड इज द बेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ, अबव द अर्थ, बिलो द अर्थ। लॉर्ड राम ने भी अपने माइंड रिसोर्स के साथ मंकी रिसोर्स क्रिएट किया, जो उनके पास अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके ही क्रिएटेड मंकी रिसोर्स एंड ही क्रिएटेड ह्यूज आर्मी ऑफ मंकीज। तो वानर सेना तैयार की। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने वानर सेना तैयार की। उस वानर सेना को ही ग्रूम किया, उसको युद्ध के लिए तैयार किया एंड अल्टीमेटली ही वॉन द बैटल अगेंस्ट माइटी रावण। So dear students, this is a lesson for everybody, that we should all be fearless and we should all make optimum use of our mental resource, of our mental strength. When mental strength is there, then all other strengths can always be created, all other resources can always be created. So it often happens in our day-to-day life, whenever people raise such questions to us, why couldn't you succeed in your life? We often have this excuse, we often have this reason कि भाई ये प्रॉब्लम थी, हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, हमारे घर में कुछ और फैमिली प्रॉब्लम थी। We narrate different problems, लेकिन लॉर्ड राम ने कोई प्रॉब्लम का हवाला नहीं दिया। उन्होंने अपना टास्क, उन्होंने अपना कर्म, उन्होंने अपना फर्ज अपने सामने रखा और उसके लिए खुद को तैयार किया। और मंकी रिसोर्स क्रिएट करके लॉर्ड हनुमान की मदद लेकर उन्होंने एक वानर सेना तैयार की, उनको युद्ध के लिए भी ग्रूम किया, उनको ट्रेनिंग दी और अल्टीमेटली माइटी रावण की जो एक माइटी आर्मी थी उसके खिलाफ, उसके ऊपर विजय हासिल की। सो जब हम सच्चाई के साथ हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होता है, ईश्वर हमारे अंदर है और वो ईश्वर हमेशा हमारा साथ देता है। आज जो हमारी असेंबली है उसका यही थीम है that we are to have victory over evil. So evildoers, they are always weak, and those who are very firm on the path of righteousness, they are all very strong. So Vijayadashmi is the festival of strength. This is the festival of bravery. This is the festival of truthfulness. This is the festival of righteousness. Enjoy the celebration. God bless you all. Good morning, namaskar and sat sri akal to all of you. India is a land of so many fairs and festivals. All these festivals teach us so many life lessons. These life lessons keep us all firm on the path of truth and goodness. These life lessons make us all morally strong. All these festivals that we celebrate in our country are an integral part of our beautiful culture. Vijayadashmi is one such festival that is celebrated all over India with a great deal of fervor. These festivals always make us aware of the truth that it is goodness that always prevails over evil. It is truth that wins over falsehood. Lord Ram is an embodiment of goodness, and it is He who
these days, so many effigies of Ravan are erected, and when the era of Lord Ram strikes, these effigies of Ravan they get burned, and so many firecrackers get exploded. So this festival has a strong message for all of us, yet it is also a fact that so many of us don't reflect over the life lesson that this festival has for the entire of humanity. And it is just considered an occasion to have and fun and frolic. We have a short skit that makes us all aware of Vijay Dashmi actually stands for. Let's watch this skit, which is interaction between two sisters. क्या बात है पवन, तुम क्या सोच रही हो? दीदी, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। इस बात को लेकर कंफ्यूज हो? क्या फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैथमेटिक्स का सम नहीं निकल रहा है? नहीं दीदी, ऐसे कंफ्यूजन के लिए तो हमारे अध्यापक हमारी मदद कर ही देते हैं। तो फिर और क्या कंफ्यूजन है? आज दशहरे का त्योहार है, दादा की सब्जी में जलेबियाँ लाए हैं। चलो चलो जल्दी जलेबियाँ खाते हैं, नहीं तो मम्मी की सारी जलेबियाँ मेहमानों को खिला देनी है, हमारे हिस्से एक भी नहीं आनी है। दीदी, विजयदशमी को लेकर ही तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है। विजयदशमी में क्या कंफ्यूजन है? इस त्योहार में तो बहुत मजा आता है। रावण के बड़े बड़े बुत खड़े किए जाते हैं, फिर भगवान राम जोर से तीर छोड़ते हैं जो रावण को लगता है और उसके बुत में आग लग जाती है और जोर जोर से पटाखे बजते हैं। फिर हमें जलेबियाँ मिलती हैं खाने के लिए और गन्ने मिलते हैं छील कर चूसने के लिए। इसमें बड़ा क्या कंफ्यूजन है? दीदी, मेरी कंफ्यूजन ये है कि अगर रावण को भगवान श्री राम ने हजारों साल पहले ही मार डाला था, तो फिर हर साल बार बार उसका बुत खड़ा करके उसको आग लगाने की क्या जरूरत है? पवन, विजयदशमी एक त्योहार है। अब अगर त्योहार में पटाखे न चले या फिर पटाखा न हो तो क्या त्योहार में मजा आएगा? तुम दोबारा कभी ऐसी बात न करना कि रावण का बुत बार बार क्यों जलाया जाता है। हमारे प्रिंसिपल सर ने तो ये छुट्टी बंद कर देनी है। चलो चलो जल्दी जाके हम जलेबियाँ खाएं। रुकिए गांधी जी, पवन को विजयदशमी के त्योहार को लेकर कंफ्यूजन है, अब आप ही उसे समझाइए। बेटा, क्या कंफ्यूजन है? हमारे सभी त्योहार या पर हमारे सभ्याचार का एक अभिन्न हिस्सा है। हमें अपने सभ्याचार को लेकर हर एक त्योहार की इज्जत करनी चाहिए। विजयदशमी का त्योहार बुराई के ऊपर अच्छाई का त्योहार है और यह त्योहार जुल्म के ऊपर वीरता का त्योहार है। यह त्योहार हमें प्रेरित करता है कि हमें जुल्म और बुराई से हमें दूर रहना चाहिए। और भले यह त्योहार हमारे सभ्याचार का हिस्सा है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बुराई और जुल्म हमारे देश में निरंतर बढ़ रहे हैं। इसलिए हर साल रावण का पुतला जलाकर हमें यह प्रेरित किया जाता है कि बुराई और जुल्म से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुराई और जुल्म की सजा हार ही होती है और विजय हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। अब बताओ, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जलेबियाँ भूख चलियाँ जे, छिंदी आगे खा लो सब। चलो चलो जल्दी हम जलेबियाँ खाएं। रुकिए गांधी जी, पहले हम ये गीत गाएं।
Lord Ram fought a valiant battle against mighty Ravan and beat him in that battle, which was actually the battle between truth and falsehood. It was the battle between goodness and evil. Lord Ram is the symbol of goodness and righteousness. He is the embodiment of morality. Ravan, on the other hand, personifies evil. This battle between goodness and evil goes on in every human mind. We have illustrations of Lord Ram as well as those of Ravan. There are people who fall in the trap of misleading elements and follow the path of evil. It is Ravan who misleads such human beings. When people remain firm on the path of righteousness, it is Lord Ram who wins over Ravan. Then we stay firm on the path of polarity with the blessings of Lord Ram, and we are appreciated and blessed by everyone. But if we take a wrong direction and turn towards dishonesty and deception, this is the way of Ravan in that situation. Lord Ram doesn't bless us, and we all face ignominy and humiliation all through our life. We have with us Lord Ram to tell us more about what we need to do in order to have his blessings. Let's listen to Lord Ram. हजारों सालों के बाद भी मैं आज आपके बीच खड़ा हूँ। मैं आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। मैं आपको ये भी याद दिलाने के लिए आया हूँ कि मैं आपके बीच ही हूँ। आपके अंदर जब जब भी रावण रूपी बुराई का जन्म होगा, तब तक मैं उस रावण रूपी बुराई को मार गिराने के लिए खुद स्वयं आपको प्रेरित करूँगा। लेकिन आपको मुझे आवाज जरूर लगानी होगी। जो जो मुझे आवाज लगाएगा, उस
जो इंसान इस सच्चाई को समझते हैं, उनके अंदर से मुझे हमेशा ही आवाज आएगी और मैं इन्हीं इंसानों के अंदर के रावण को जरूर मारूंगा। लेकिन जो बुराई के आकर्षण में खो जाते हैं, मैं उनके अंदर से लुप्त हो जाता हूँ। आज विजयदशमी के दिन मैं अपने सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने अंदर से लुप्त ना होने दें। जीते रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो और सच्चाई और अच्छाई की राह पर सदा ही चलते रहो। Now put your hand on your heart and repeat after me. विजयदशमी का दिवस विजय की राह दिखाता है, विजय की राह दिखाता है, रास्ता सही बताता है, रास्ता सही बताता है, अच्छाई से हमको विजय है मिलती, अच्छाई से हमको विजय है मिलती, सच्चाई से जिंदगी है खिलती, सच्चाई से जिंदगी है खिलती, झूठ से होती है हार, झूठ से होती है हार, हार पर हमें करना है वार, हार पर हमें करना है वार, विजय होके दिखाना है, विजयी होके दिखाना है, विजय का पथ अपनाना है, विजय का पथ अपनाना है, छल कपट से
होने पर मानेंगे हम, खुद की कमी को पहचानेंगे हम, खुद की कमी को पहचानेंगे हम, गलती को नहीं दोहराना है, कमियों को दूर भगाना है, पवित्र सोच और मन में जोश के साथ हो जो होश, तो विजय सभी तक जाएंगे, हार पे काबू पाएंगे, विजयदशमी की यही है सीख, इस सीख से हम जाएंगे जी। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एकदम विजयदशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एकदम विजयदशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एकदम विजयदशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे, छोड़ बुराई आज एकदम